أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے شروع کرتے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے ادغام کو کمپلیٹ کیا تھا الحمدللہ. آج ہمارا نون تنوین کا آخری قاعدہ اکفا کا ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور جس نے نہیں دیکھا پیچھے کے 3 قاعدوں کو اچھے سے سمجھ لے نون ساکن اور تنوین کا، تو انشاءاللہ تو یہ والا آپ کو اور اچھے سے کلیئر ہو جائے گا. جب تک آپ پیچھے والے نہیں دیکھیں گی تو سمجھ نہیں آئے گا. اکفا، تو اکفا کیا ہوتا ہے؟ اکفا کا مطلب ہوتا ہے جیسے خفا یا خفی، خفی یعنی کہ چھپانا. اکفا خفا جیسے بولتے ہیں نا خفی، تو ہائڈ. اکفا یعنی چھپانا، ہائڈ کرنا. کس کو چھپانا؟ نون کی آواز کو، تنوین کی آواز کو چھپانا. اور نون کی آواز کو گننا کے ذریعے چھپایا جاتا ہے. یہ آواز جب ہم چھپاتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی، تو یہ آواز ہم ناک میں لے کر جاتے ہیں گننا کے ذریعے. تو ناک میں آواز کو چھپانا ہی یہ کیا ہوتا ہے؟ گننا کے ذریعے ہم جو ہے کرتے ہیں اس کو ہی ہم اکفا کہتے ہیں. اب یہ اکفا کتنے ہیں؟ اس کے کتنے حروف ہے؟ اس کے حروف 15 ہے. ہم نے ابھی تک جو 3 پڑھے، آگے ہم اس کا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اسی میں ہی. یہ ہم نے پہلے دیکھ لیے ہیں. اقلاب کا بھی دیکھ لیا ہے، ادغام بھی دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے وہ سب دیکھ لیے، اور اظہار کا بھی دیکھ لیا ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ 29 حروف تہجی ہے، اس میں سے اگر ہم نکالیں اکفا کے 6 حروف، سوری اظہار کے 6 حروف حروف ہلکیہ، اور اقلاب کا 1 حرف با، 7 ہو گئے، اور 6 حروف ہمارے آ جاتے ہیں یرملون ادغام کے، تو ٹوٹل ہو گئے 7. بچے جتنے بھی حروف ہیں ہمارے مائنس کر دیں آپ ان 7 حروفوں کو. 29 میں سے مائنس کر دیں گی تو 15 بچ جائیں گے. اور اگر ہم ان کو حروف تہجی کو 28 میں دیکھیں، کیونکہ جب ہم وہ نکال دیتے ہیں اس میں ایک حمزہ یا کو نکال دیتے ہیں، ایک یا جو دوسرے والی ہوتی ہے، تو پھر ہمارے 28 ہوتا ہے. تو کوئی 28 کہتا ہے تو 29 دونوں ہی صحیح ہے. تو اگر ہم اس میں سے 3 قاعدوں کے جو ہم نے حروف دیکھے ہیں اس کو مائنس کر دیں ٹوٹل حروف میں سے، تو جو بچتے ہیں وہ ہمارے اکفا کے حروف ہوتے ہیں. اور یہ کتنے ہو گئے ہیں؟ یہ ٹوٹل ہمارے یہاں پہ آپ کو 15 نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ مائنس کر لیں جتنا بھی آپ کا بیٹھے گا، 15 یا 13 جو بھی ہے. اگر ہم 28 کے حساب سے دیکھیں جو بھی ہے، خیر آپ نے کرنا کیا ہے؟ ادغام، اظہار، اقلاب کو یاد کر لیں ان کے کون کون سے حروف ہے، تو یہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. آپ کو یہ حروف یاد نہیں کرنے پڑیں گے، صرف آپ حروف ہلکیہ کے لیٹر یاد کر لیں، یعنی اظہار کے اور اقلاب کا اور ادغام کے یرملون. بس اس کے بعد جو بچے وہ آپ کے اکفا کہلائیں گے الحمدللہ. تو پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں 10 حروف جو آتے ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں باریک لیٹر. یہ دیکھیں، یہ ہمارے ٹوٹل حروف ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم دیکھیں گے 10 حروف باریک ہیں. کون کون سے ہیں؟ تا، دال، سین، شین، فا، فا، زال، ٹھیک ہے، اور جیم، زا اور کیف.
ये हुरूफ हमारे बारीक है, ठीक है। और ये दूसरे जो हुरूफ है बचे हमारे, ये हुरूफ हमारे मोटे हुरूफ है। फुर, सौत, दौत, कौफ, तो, जो, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 हुरूफ आपके मोटे हैं इसमें और बाकी आपके बारीक है। ये क्यों मैं आपको नोट डाउन करा रही हूँ, इसलिए क्योंकि इक्फा का भी 2 टाइप से हम करते हैं। इक्फा को हम 2 टाइप से करते हैं, यानी एक हमारा मोटा इक्फा होता है, पुर इक्फा होता है, और एक हमारा लाइट इक्फा होता है। अब वो कैसे किस पर होता है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। किस तरीके से उस पे इक्फा किया जाता है। बारीक हुर्फों पर हमारा बारीक इक्फा होता है और मोटे हुर्फों पर हम मोटा इक्फा करते हैं। कायदा क्या है? वो ही जो हमारा 3 कायदों में चल रहा था। नून साकीन और तनवीन कुछ भी आ सकता है कुरान पाक में, या तो तनवीन होगा या नून साकीन। इसके बाद आपके 15 हुरूफ आ जाएंगे। 15 हुरूफ आने पर आपने करना क्या है? छुपाना है। किसको छुपाना है? नून साकीन और तनवीन की आवाज को कहाँ छुपाना है? नाक में छुपाना है। जैसे हम पढ़ रहे थे ना, अन, हमजा नून जबर अन, बा नून जबर बन, ये तनवीन है ना, बन, अन। तो हमने ये जो अन बन यानी कि जो नून की आवाज है, लास्ट में जो नून आ रहा है, अन ना, बन ना, तन ना, जो लास्ट में नून की आवाज है। और इसी तरीके से तनवीन में और नून साकिन में हमने देखा था लास्ट क्लास में, पहले क्लास में, कि नून साकिन और तनवीन की आवाज लास्ट में दोनों में नून होता है ना, दोनों की आवाज में नून छुपा होता है लास्ट में। तो अन, इसको देखेंगे अन, और तनवीन को देखें, हमजा 2 जबर अन, बा 2 जबर बन। और अगर नून साकिन को देखें, हमजा नून 2 जबर अन, बा नून जबर बन, ता नून जबर तन। तो दोनों में अन बन यानी कि नून आ रहा है। तो हमने इक्फा में वो नून को छुपाना है, ये जो इन दोनों क्लास में आएगा वो नून हमने छुपाना है। और उसको छुपा के हमने अपने नाक में ले जाना है, गुन्ना के। हम उसको फिर गुन्ना करते हैं छुपाते हुए, ठीक है। तो कायदा क्या है? तनवीन और नून साकीन के बाद अगर ये 15 लेटर 15 हुरूफ आ जाते हैं, तो इसकी नून साकिन और तनवीन की आवाज को हम छुपाएंगे कहाँ? नाक में। तो ये होता है हमारा इक्फा, ठीक है। और फिर देखें इक्फा, ये देखिए इक्फा की 2 अकसाम हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ मुस्तालिया यानी कि बारीक, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे बारीक गुन्ना होगा। और अगर आपके मोटे लेटर आ जाते हैं 5, तो यहाँ पे गुन्ना मोटा होगा। गुन्ना बारीक और मोटा ये हम देखते हैं। ये देखिए, तो इक्फा, इक्फा में क्या होता है, बहुत इजी सा मैं आपको बताऊंगी। बहुत सिस्टर इसमें क्या करती हैं, इक्फा में अगर आ जाता है इस तरीके से, ये हुर्फ है हमारा अदनीन, ये कैसे पढ़ेंगे इसको? यहाँ पे तनवीन है, ठीक है। तनवीन का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, अदनिन तजरी। अब यहाँ पे देखें, ये देखें, अदनिन तजरी। तो हम इसको अदनिन नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तनवीन का कायदा है, और तनवीन के बाद हमारा लेटर आ रहा है इक्फा का, ना यहाँ पे इदगाम का है या मलून, 6 हुरूफ में से नहीं है। सबसे पहले आपने क्या देखना है? तनवीन आप देखेंगी या नून साकिन देखेगी, जो भी हो पहले हुरूफ में, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट हुरूफ देखेंगी। अब जरूरी नहीं है वो आपका दूसरे कलमे में हो तो ही आप इक्फा करेंगे, ऐसा नहीं है किसी भी कायदे में। वो आपका एक ही कलमे में भी आ सकता है, इक्फा, गुन्ना, इकलाब, ये सब, और अलग अलग हुर्फों में भी आ सकता है। तो आपका काम क्या है? पहले आप देखेंगी तनवीन है या नून साकिन है, उसके बाद आप उसका हुर्फ देखेंगी। हुर्फ में अब आपको 15 हुर्फ याद नहीं होंगे तो आप कैसे पहचानेंगी ये इक्फा का है? तो आपको जब याद होंगे कि या मलून, पहले आप चेक करेंगी, या रा मीम लाम वाव नून नहीं है तो यानी इदगाम नहीं होगा। फिर आप देखेंगे इकलाब का बा भी नहीं है। फिर आप देखेंगे इजहार के 6, वो भी नहीं है इसमें से।
हा हमजा ख, ठीक है, आइन वो भी नहीं है यहाँ पे 6 में से, तो बचे क्या? फिर जो हुर्फ बचे वो इक्फा है। तो फिर आप यहाँ पे पहचान जाएँगी। फिर हम इसकी आवाज़ को छुपाएँगे, देखें, अब हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे अदनिन तजरी, हम इसको इन जो आवाज़ आ रही है अदनिन, इसको नून को हम लास्ट में से इसको नाक में ले जाएँगे छुपाते हुए। अदनिन तजरी, अदनिन निय अदनिन तजरी, ठीक है? इसी तरीके से नीचे देखें करीबिन, अब यहाँ पे बहुत लाइट वाला गुन्ना हो रहा है क्योंकि हमारा ता क्या है, फिर हम देखें, आप इसमें देखेंगी सबसे पहला तनवीन है या नून साकिन है, ठीक है? फिर आप नेक्स्ट रूप पहचानेंगी इक्फा का है, इकलाब है या इदगाम है। आपने देखा इक्फा है, फिर उसके बाद आप देखेंगी इक्फा हो रहा है, बारीक लेटर है या मोटा लेटर है। बारीक है तो गुन्ना बारीक करेंगी आप। अदनी, अब मेरा गुन्ना बारीक हो रहा है, आपका भी बारीक होना चाहिए। अदनी तजरी, अब इसे आप ऐसे नहीं करेंगी। अदनी अदनी, मोटा नहीं करना गुन्ना, गुन्ना बारीक होगा क्योंकि बारीक हरूफ है यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे देखिए करीबिन, करीबिन, अब मैं यहाँ पे बिन नहीं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तनवीन है ना, बिन आएगा ना, जैसे करीबिन, बहुत सी सिस्टर करती हैं करीबिन सुम्मा, ऐसे नहीं होगा क्योंकि नून को हमने छुपाना है और ये नून हमारा गुन्ना में छुप जाता है जब हम इसको नाक में ले जाते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं करीबिन बिन सुम्मा, ठीक है? तो हमने यहाँ पे बारीक वाला क्या किया, गुन्ना किया, इक्फा किया, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए मोटे वाला में, देखिए यहाँ पे मोटा भी देखते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सफा, सफा, अब देखिए यहाँ पे मोटा हो जाएगा क्योंकि मोटा क्यों होगा, फा, ये यहाँ पे दो तनवीन है ना, तनवीन के बाद आपने वो अगला लेटर देखना है, ये सौद हैवी है या बारीक, आप उसी के अकॉर्डिंग गुन्ना इक्फा करेंगी। यहाँ पे इक्फा हमारा मोटा होगा, क्यों? क्योंकि सौद हैवी लेटर है। तो आप इसे पढ़ेंगी सफा, 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 हैवी हो रहा है ना। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे जाल है, अब यहाँ पे जाल बारीक है तो अब मेरा कैसा होगा, नारों, नारों, बारीक हो रहा है। और सफ़ा में देखिए सफ़ों, सफ़ों, सफ़ा, ठीक है? लैलों, लैलों तवीला, तो इस तरीके से आप इसको हुरूफ के अकॉर्डिंग मोटा और बारीक करेंगी इक्फा, ठीक है? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर दूसरी बात, अभी भी बहुत सिस्टर को ये है कि अभी भी समझ नहीं आया है, कोई बात नहीं। देखिए अब हम इक्फा की आवाज को पहचानते हैं कैसी होती है। जैसे आसमान होता है, ठीक है? अब अगर हम इसे बहुत सी ये भी बोल देते हैं ना आसमां, तो हमने क्या करा, यहाँ पे नून को छुपा लिया, आसमां पड़ा ओनली, आसमां, जबकि इधर है आसमान। तो यहाँ पे जब हमने छुपाया आसमां, तो माँ ये हमारा कहाँ गया, नाक में गया ना, आसमां, माँ। तो अगर हम इसे पढ़ेंगे तो आसमान पूरा हो गया, अगर हम इसे छुपाएंगे तो फिर हम बोलेंगे आसमां, माँ। और इसी तरीके से ये देखें, एक होता है, और इससे इजी में लूं, जैसे नॉर्मल सभी के पास होता है, जैसे पंखा, आप इससे भी आप पहचान सकती है पंखा, पंखा, ठीक है? पंग, नून छुप रहा है उसमें, पनखा नहीं बोल सकते आप, पनखा, पनखा। तो नून को आप छुपा रही हैं, कहाँ छुपा रही हैं, नाक में, पंखा, पंखा, ठीक है? पंखा। इसी तरीके से दंगल, मंगल,
ये आप जो नून की आवाज इसमें छुप रही है तो यही इक्फा है। ठीक है, समझ आया? इसी तरीके से एक और एग्जांपल से देखिए, गुन्ना। गुन्ना में हमने देखा था नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में कंप्लीट गुन्ना होता है, लेकिन हमारा बहुत सी सिस्टर को गुन्ना और इक्फा में फर्क समझ नहीं आता। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में क्या होता है, हमारी जबान मूव होती है, यानी कि वो ऊपर लग रही है। जैसे इन्नल्लाह, ठीक है। और इसी तरीके से अम्मा, तो दोनों होंठ मिल रहे हैं, यानी हमारी जबान पर कंट्रोल नहीं होता है। गुन्ना में हमारा जब हम मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पे करते हैं तो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। किस पर? जबान पर। वो हमारी मुंह होती है, हम उसको रोक नहीं सकते, वो हमारे बस में नहीं होती है। आप खुद ट्राई करें। इन्ना, अम्मा, ठीक है। और इक्फा में क्या होता है? इक्फा में हमारी जबान पर कंट्रोल होता है, ये फर्क है। इक्फा में हमारी जबान स्ट्रेट में रहेगी, रेस्टिंग मोड में रहेगी। देखिए आप खुद एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखिए आप, जैसे आप इसमें से कोई भी पढ़ें, देखें, दक्कं, दक्कं। जिस वक्त आप दक्कं पे आते हैं, नून की आवाज को छुपाती है। जब आप नून की आवाज छुपाएंगी तो आपकी जबान रेस्टिंग मोड पे रहेगी, उसका कोई भी आप उस पर जो है वो हिल डुलेगी नहीं, यानी कि आपका उस पर कंट्रोल होगा। ठीक है। और गुन्ना मीम मुशद्दद नून मुशद्दद में क्या था, हमारा जबान पर कंट्रोल नहीं होता, इसमें जबान अप डाउन हो जाती है। इक्फा में आपका कंट्रोल रहेगा, जबान खामोशी से बैठी रहेगी अपनी जगह पर कि ये तो खुद से हो ही रहा है, मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है। लैला तवीला, ठीक है। नफ्सा, नफ्सा ज़किय्यता, ठीक है। कुतुबुन, कुतुबुन। फिर जब आप नेक्स्ट मखारिज पे जाएंगी, काफ पर अगर आप जाएंगी तब आपकी जबान हिले डुलेगी। जिस वक्त आप नून को छुपाएंगी उस वक्त आपकी जबान रेस्टिंग मोड में होगी, आपका उस पर कंट्रोल होगा। ठीक है। कुव्वत, देखिए कुव्वत, जब मैं दौद पे जाऊंगी तो ही मेरी जो फिर नेक्स्ट हरूफ का जो भी मखरज होगा फिर तो जबान जाहिर सी बात है वो तो लगेगी। लेकिन जिस वक्त आप नून को छुपाएंगी या तनवीन की आवाज को छुपाएंगी उस पर आपका कंट्रोल रहेगा। अब ये देखिए, ये है नून साकिन के एग्जाम्पल। हमने ऊपर में देखा तनवीन का कैसे होगा। ये तनवीन में आपका कुछ भी आ सकता है, दो जबर आ जाए, दो जेर आ जाए, दो पेश आ जाए, कुछ दो जेर आ जाए, दो जबर आ जाए, फततैन आ जाए, कसरतैन आ जाए, दम्मतैन आ जाए। उसके बाद आप इक्फा के हुरूफ को देखेंगी, फिर आप देखेंगी बारीक हुरूफ है या हमारा मोटा हुरूफ है, उसके अकॉर्डिंग आप इक्फा करेंगी, मोटा या बारीक। ये थे हमारे तनवीन के एग्जाम्पल, और ये है हमारे नून साकिन के एग्जाम्पल। नून साकिन, ये देखें, नून साकिन यहाँ पे आ रहा है, देखें, बीमा कुंतुम, तुम लाइट इक्फा हो रहा है यहाँ पे, तुम, तुम दो हरकत आपने इक्फा करना है, गुन्ना करना है, इससे ज्यादा आप लंबा नहीं ले सकती हो। जैसे तुम, इतना लंबा नहीं करना। दो उंगली को आप बंद करें, वन बाय वन करके बंद करें, वन बाय वन करके खोल दे, बस इतनी देर आप गुन्ना करेंगी, इक्फा करेंगी। ठीक है। तुम, बीमा तुम, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए नून साकिन है, नून साकिन के बाद अगला हरूफ हमारा दाल है। ये आपने देखना होगा ईदगाम का है या इकलाब का है, कौन से कायदा का है। फिर आप यहाँ पे, फिर आपको पहचान ये रहेगी आपका
गुन्ना तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, गुन्ना मीम मुशद्दद नून मुशद्दद का अलग होता है, वो कंप्लीट गुन्ना होता है, वहां पे जबान आपकी कंट्रोल में नहीं होती है, यहाँ पर होगी दा। दा जब मैं बोलूंगी तब मेरी जबान अपने मखरज पे लगेगी, दा। दा, अब दा के लिए कहाँ लग रही है, जबान की नोक ऊपर सनाया उलिया की जड़ों में लग रही है, क्योंकि दाल का मखरज वहीं से है। दा रब्बिहिम मा सकुलत, मा सकुलत, मा ज़ल्लज़ी, मा ज़ल्लज़ी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगी आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। अब एक बार हम क्विक सा रिवीजन करते हैं, बहुत सी सिस्टर को अभी भी लग रहा होगा कि अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं पीछे के, तो अभी हम देखते हैं। जी, ये देखिए, इदगाम, इदगाम की पहचान, फमन यामल। इदगाम यानी कि इसमें क्या होगा, मुशद्दद के साथ हुरूफ आएंगे, यरमलून, यहाँ पे या का दिखाया गया है, या, फमन यामल। तो ये हमारा यरमलून में से जो भी आपका हुरूफ आ जाएगा नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, यहाँ पे इदगाम होगा, क्योंकि इदगाम मैंने होता है मर्ज करना, मिलाना। तो हमारा यहाँ पे मिल रहा है फमन यामल। फिर इजहार में क्या होता है, इजहार यानी कि आपका तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ हल्किया का कोई भी लेटर आ जाए तो वहां पे आप जाहिर करके पढ़ेंगे। यहाँ पे हमजा है, आहवा, तो हमजा जबर आ लगा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे इजहार करेंगे, गुस्सा अन आहवा। यहाँ पे गुन्ना इकफा नहीं होगा, सिंपल आप पढ़ेंगे इसे, गुस्सा अन आहवा। ठीक है, अब इकलाब में क्या था, बा आएगा, मीम होगा, बस एक ही हुरूफ है इकलाब का हमारा, तो यहाँ पे आप इसको गुन्ना करेंगी, मम बखिला। और इकफा में आपका रा, यानी कि ये हुर्फ निकाल दें, अब यहाँ पे नून साकिन के बाद रा आ रहा है, वअंज़लना। अब यहाँ पे एक बार और देख लें और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हुरूफ है, देखिए सारे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, इदगाम के आपके हुरूफ ये हो गए हैं यरमलून। ठीक है, ये चार, ये 6 हुरूफ हमारे यरमलून, इदगाम, इजहार के हुर्फ हल्किया 6 है, और इकलाब का बा है, और इसी तरीके से इकफा के हमारे ये 15 हुर्फ है। ठीक है, क्लियर। अब इसको हम एक बार एग्जाम्पल में यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि कुरान की आयतों में आप कैसे पहचानेगी, ये देखें आप, यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट वाला फाअंता, यहाँ पे ये हो रहा है हमारा, ये जितने आपको ऑरेंज वाले नजर आ रहे हैं, यहाँ पे पहले आप देखिए रेड वाला क्या है, इदगाम, और फिर ब्लू क्या है, इजहार। ठीक है, और इसी तरीके से ग्रीन क्या है, बा इकलाब, और ऑरेंज वाला ये हमारा इकफा के है। ठीक, अब यहाँ पे हम पहचानते हैं, बहुत इजीली आप पहचान लोगे, क्योंकि सबसे पहला हमारा ऑरेंज वाला है, फाआता। तो ऑरेंज वाला क्या है, इजहार का है, इकफा का है, तो यहाँ आप इकफा करें, फाआता, इस तरीके से, क्योंकि आप इकफा की हरूफ है, ता आया है इसमें नून साकिन के बाद। फिर ब्लू वाला सर्कल देखें, अनहु, इजहार है, क्योंकि नून साकिन के बाद हा आया है, नून साकिन के बाद हा आया है, और हा हमारा इजहार है, उसकी वजह से यहाँ पे हम जाहिर करके पढ़ेंगे, अनहु तलहा, अनहु तलहा, कोई गुन्ना इकफा नहीं होगा। फिर आप यहाँ पे देखिए, फिर से हमारा ऑरेंज वाला है, ऑरेंज वाले में भी आपका सेम वही होगा, क्योंकि शीन है, ये हमारा इकफा का है, फमन शाआ,
फमन, अब फमन जब आप बोलेंगी आपकी ज़ुबान रेस्टिंग मोड पे है, ठीक है? कंट्रोल है आपका। फमन शाअ, इस तरीके से। उसके बाद रेड वाला यरमलून सॉरी इदगाम का है। फी सेकंड लाइन देखें, फी सुहुफिम, यहाँ पे तनवीन के बाद मीम मुशद्दद आया है, ठीक है? और ये हमारा यरमलून का है, या रा मीम लाम बा नून, तो मीम आ गया है ना इसमें तनवीन के बाद, तो ये है हमारा मीम। तो ये यहाँ पर आप इदगाम करेंगी, यानी इसको मर्ज कर देंगी, मिला देंगी इसमें आप। सुहुफिम, मिलाते हुए गुन्ना करेंगी। टाइमिंग देगी 2 हरकत। सुहुफिम मुकव्वमतिन, ठीक है? तो ये हमारा रेड, ये है हमारा इदगाम। फिर नेक्स्ट में भी हमारा इदगाम हो रहा है। ता दो जेर तीन तनवीन है और तनवीन के बाद फिर से मीम मुशद्दद है और मीम हमारा इदगाम का हुरूफ है। यरमलून मरफूअतिम मुतहरतिम। अब यहाँ पे ग्रीन वाला देखें, ग्रीन वाला हमारा क्या है? इकलाब का है। ऊपर सेकंड लाइन मुतहवतिम, क्योंकि छोटा सा मीम भी बना है और ठीक है, नेक्स्ट रूप बी आई डी, बा के नहीं, ये हमारा बा क्या है? इकलाब का ही है ना, बा और मीम छोटा सा आना, ये हमारा इकलाब का कायदा होता है। तो यहाँ पे फिर हम दो दो साथ साथ हो रहे हैं, मरफूअतिम मुतहवतिम। तो ऐसा नहीं है आपको एक एक हुरूफ में एक ही कायदा मिलेगा, दो भी मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो है, इदगाम भी है और इकलाब भी है। मरफूअतिम मुतहरतिम, दोनों में आपका मिलेगा, इकलाब में भी और इदगाम में भी, प्लस गुन्ना होगा। थर्ड लाइन फिर से वही किरामिम बररह, किरामिम किरामिम बररह। ये देखिए यहाँ पे मीम है छोटा सा और अगला हुरूफ हमारा बा है, तो ये क्या है? इकलाब है। फिर इसी में आगे इंसानु, इंसानु। अब यहाँ पे सीन है हमारा, ये कौन सा हुआ? ये हमारा इक्फा का है, ठीक। और फिर हमारा ये इजहार का देखे, मिन मिन आई, आप यहाँ पे कोई गुन्ना इक्फा नहीं करेंगी क्योंकि अगला हुर्फ हमारा हमजा है, आई, ठीक है। मिन आई सिंपल पढ़ेंगे आप क्लियर से। और इसी तरीके से शै इन खलक़कुम, शै इन खलक़। अब शै इन में आपका नेक्स्ट रूल क्या है? ख है और ये हमारा इजहार का है, तो यहाँ पे भी आप गुन्ना इक्फा नहीं करेंगी, इजहार करेंगी। शैइन खलक़, शैइन खलक़। तो इस तरीके से आप, उम्मीद है आप कुरान पाक में फिर ऐसे इजीली आप पढ़ सकती हैं, इस तरीके से हमारे कुरान पाक में आते हैं। तो ये बात याद रखिए, जरूरी नहीं होता कि एक ही हुरूफ में आपका जो है एक ही इक्फा, एक ही कायदा आ सकता है, ऐसा नहीं है, दो भी आ सकते हैं। बस आपने ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना है। बस आपने करना क्या है? आपने इनको याद कर लेना है, इदगाम को कर ले आप याद, इजहार के आप हुरूफ याद कर ले, इलाब के कर ले, बस ये 3 कायदे आप याद कर ले इनके हुरूफ। और बाकी जो आपके रह जाएंगे वो आपको याद करने की नीड नहीं होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आज हम इतना ही रखते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।